हेलो क्लास, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। चिल्ड्रेन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज द आइसोटोप एंड आइसोबार फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। राइट गाइस, in our previous class, or we can say that in our yesterday class, we are talking about the atomic number and the mass number, as well as the discovery of electron, proton and neutron. And today we learn about the isotopes and isobar, as well as the atomic model. Okay children, now come to the today's topic, that is the isotope and isobar. देखिए, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, आइसोटोप और आइसोबार को डिस्कस करने से पहले एज यूजुअल मैं आपसे कहना चाहूंगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। Why? Because sharing is caring. Right guys? Okay, now come to the today's topic, that is the isotope and the isobar. We understood children what is the difference between the isotope and the isobar. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ सी चिल्ड्रन, देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर हम आइसोटोप्स के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स इज बेसिकली द isotope is basically the atomic species. This is the atomic species of an element. This is the atomic species of an element. किसी भी element की वो एक atomic species which having the same atomic number but different mass number. Having similar atomic number, having similar atomic number, and we all know children what is the atomic number and what is the atomic mass, right? हम सबको पता है, कल मैंने आपको बताया था, फिर से देख लीजिए। एटॉमिक नंबर हम कहाँ पे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, right? And the mass number is represented by A. So when atomic number is similar in an element but having different mass number, this is called isotopes. राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज कॉल्ड एज एन आइसोटोप। देखिए आइसोटोप क्या हो गया, आइसोटोप क्या है, आइसोटोप एक ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं, ऐसे एलिमेंट के सेट को कहते हैं जहां पे एटॉमिक नंबर सेम हो। इट मींस दैट अगर हमने 2 से 3 एलिमेंट ले लिया तो वहां पे एटॉमिक नंबर सेम होंगे। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ Z इज सिमिलर बट द वैल्यू ऑफ X इज डिफरेंट। सो दिस टाइप एलिमेंट और द एटॉमिक स्पीशीज ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एन आइसोटोप। ओके गाइस, नाउ कम टू द एग्जांपल। अब एग्जांपल के बारे में देखिए हम डिस्कस करेंगे। एज वी ऑल नो चिल्ड्रन, द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन देयर 3 स्टेट, दैट इज H11 and this one is the mass atomic number and this one is the mass number, right? Now next is the H12. Now see, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, मास नंबर चेंज हो गया एंड व्हेन मास नंबर इज चेंज दिस पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड एज एन आइसोटोप्स, राइट? नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज द 1H3. नाउ अगेन दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस वन इज द मास नंबर एंड व्हेन नाउ सी दे आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। दीज आर द isotopes of hydrogen, right? These are the isotopes of hydrogen which exist in nature. Basically children, this see the in first case the atomic number is 1, in second case the atomic number is 1 and in the third case the atomic number is again 1. When we talk about the mass number in first case is 1, mass number in second case is 2 and the mass number is third case is 3, right? It means that
atomic number is same but mass number is different. So this is the isotope of hydrogen. Okay guys, now see the different name of this. H1, it means that when atomic number is 1 and the mass number is 1. So these type of species is called as protium, right? This is called as protium. And when the atomic number is 1 but mass number is 2. So this is called as deuterium, right? This is called as a deuterium, or this is also represented by D. It means that D1 or 2. Okay. Now come to the third, that is when atomic number is 1 but the mass number is 3. This is called tritium. That is Tritium. Okay children. So these are the 3 isotopes of hydrogen. I hope you understood what is the isotope. Now I am taking the next example. अब another example के बारे में हम discuss करते हैं. कोई another example लेते हैं, just like second example is isotopes of oxygen. When I talk about the isotopes of oxygen, now see how many isotopes are present in nature. Basically there are the 3 different type of isotopes are present in nature of oxygen, right? So the first is the atomic number 8 but mass number 16, right? The next is the atomic number is 8 and the mass number is 17, and the third isotope of oxygen is atomic number is 8 and the mass number is 18. And what is this? This is the symbol of oxygen, right guys? The symbol of oxygen is O. This is very simple topic. It means that what is isotope? Isotope, that is the atomic species of an element having the similar atomic number but different mass number. जिसके different mass number हो, that particular species is called as an isotopes. Is this clear to you all children? Take the screenshot and I come to the next topic, that is the isobar. Okay, may I switch to the next topic? Okay children. Now see the next, that is the isobar. What is the isobar? देखिए अगर हमें आइसोटोप समझ में आ गया तो हम आइसोबार के बारे में डिस्कस करेंगे. आइसोबार भी इसका जस्ट अपोजिट होता है. What is the isobar? What is basically the isobars? Isobar is basically the atomic species of an element having the same mass number. देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था आइसोटोप्स में, वहां पे एटॉमिक नंबर सेम होता है और यहाँ मास नंबर सेम होता है. इट्स जस्ट द reverse of isotope, right guys? So the atomic species and children do one thing also, you prepare your notes simultaneously. साथ साथ में आप notes भी prepare करते चलिए कि जितनी चीजें हम लिखा रहे हैं उतनी चीजें आप कॉपी में भी मेंशन करेंगे, right? Of an elements having similar mass number but different atomic number. So this is called as isobars. Okay children, so this is the difference between isotopes and isobar. What is the isotope? Isotope in which the similar atomic number but different mass number. And what is the isobar? Having the similar mass number but different atomic number, right? When I am taking the example, now see children the different examples, that is when I am taking the example of argon, right, potassium and calcium. What is the symbol of argon? The argon symbol is Ar.
the next is the potassium, and the next is the calcium. Whether they are the isobar, अब हमें कैसे पता चलेगा? When the atomic number is different, as we all know children, what is the atomic number of argon? The atomic number of argon is 18. And what is the atomic number of potassium? The atomic number of potassium is 19. And what is the atomic number of calcium? The atomic number of calcium is 20. Right? Now come to the mass number. The mass of argon is 40. The mass of potassium is 40, as well as the mass of calcium is 40. Now see, in this case atomic number is different. That is, in the case of argon the atomic number is 18. In the case of potassium the atomic number will be 19, and in the case of calcium the atomic number is 20. But you see that the mass number in all cases, it may be the argon, it may be the potassium, it may be the calcium, mass number is same. So this is called as a isobars. This is called as an isobars. Right guys? Now I hope you understood this topic, that is the isotope and isobar. देखिए छोटा सा टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट एकदम जैसे हम लोग ने कल डिस्कस किया था ना एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग ने डिफरेंस देख लिया आइसोटोप और आइसोबार्स के बारे में. राइट? ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा. हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. ओके? ले लिया सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट? नाउ come to the next topic and the very interesting topic, that is the atomic model. अब ये एटॉमिक मॉडल की बात क्या है भाई? अब एटॉमिक मॉडल देखिए क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है एटॉमिक मॉडल. अब ये एटॉमिक मॉडल के बारे में पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक मॉडल. एटॉमिक मॉडल देखिए बेसिकली क्या हो गया कि अभी जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा, पुराने वीडियोस में देखा कि जब तक हम लोग को ये पता चल गया था, पहले तो डाल्टन ने क्या बता दिया, एटम्स आर इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता. उसको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या बताया, नो एटम्स आर डिविजिबल एंड दे आर डिवाइडेड इनटू द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल. द फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड इज द प्रोटॉन and the third is the neutron. Right? अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी हो चुकी थी. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग ने कल भी बात करी थी. दैट इज द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉन, द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड एज एन प्रोटॉन एंड द न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रॉन. राइट गाइस? नाउ सी, अब देखिए लोगों के मन में ये आ रहा था कि अरे भाई अगर ये सारी की सारी चार्ज स्पीशीज हैं तो कोई ना कोई तो अरेंजमेंट होना चाहिए ना. कोई ना कोई अगर अरेंजमेंट ही नहीं होगा तो ये हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये कैसे सेट है ना. अगर हमें कोई चीज बनाना होता है, अगर सिंपल सपोज करिए कि हमें डिजाइन करना है अपने घर के बारे में, अगर हमें घर भी बनाना होता है तो हम क्या देखते हैं कि उस घर का पहले हम मैपिंग करते हैं. राइट? पहले हम आर्किटेक्चर से बनाते हैं, क्या पहले हम घर का डिजाइन बनवाते हैं. तो यहाँ पे भी सेम काम हो रहा था कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे बनेंगे, वो कैसे दिखते होंगे, इनका अरेंजमेंट क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, या कैसे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ पे प्रोटॉन होंगे, कहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. ये सबके मन में क्वेश्चन था कि ये सब कैसे पॉसिबल है. अब इसको सॉल्व करने के लिए एक लोगों ने क्या किया, सर जे थॉमसन से कहा, सर अगर आपने प्रोटॉन बताया चार्ज पार्टिकल है, तो उन्होंने कहा यस. अगर उन्होंने कहा, आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो मुझे ये भी तो बता दीजिए कि क्या इन तीनों का अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसे ये सब सेट किए जाते हैं. तो उन्होंने सिंपली कहा कि देखो भाई, हम आपको सिंपल वे में बता रहे हैं कि इन तीनों का अरेंजमेंट कैसा होगा. अब जो सर जे थॉमसन ने दिया था उसको क्या कहा गया, द मॉडल इज कॉल्ड एज अ थॉमसन
एटॉमिक थॉमसन एटॉमिक मॉडल, राइट, और वी कैन से दैट दिस इज द वाटरमेलन मॉडल। अभी देखिए वाटरमेलन क्यों कहा गया, अभी सब हम डिस्कस करेंगे, और इट इज कॉल्ड एज अ पालम पुडिंग मॉडल, राइट। देखिए 3 डिफरेंट नामों से जाना गया है इनकी डिस्कवरी। द फर्स्ट इज द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सेकंड वन इज द वाटरमेलन मॉडल, एंड द थर्ड इज द पालम पुडिंग मॉडल। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि भाई देखिए सिंपल से कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। जे थॉमसन का क्या कहना था कि ये एक, अगर सपोज करिए कि ये आपका क्या है, ये आपका कोई एक स्फीयर है। एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा ये स्फेरिकल होता है। तो ये स्फेरिकल जो है, और यहाँ पे जितने भी आपके जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स बेसिकली पूरे उसमें स्प्रेड हैं, राइट, पूरे उसमें प्रोटॉन स्प्रेड है। अब ये जो प्रोटॉन आपके स्प्रेड थे, इसमें प्रोटॉन में देखिए स्प्रेड में क्या दिख रहा था, अब ये जो प्रोटॉन स्प्रेड थे, ये जो रेड कलर का पार्ट था, इन्होंने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो एकदम सिमिलर है वाटरमेलन से। सभी लोगों ने वाटरमेलन देखा है, राइट, आपने उसमें देखा है रेड कलर का स्फीयर होता है, और ये रेड कलर का स्फीयर उन्होंने जे थॉमसन ने किससे कंपेयर किया था, प्रोटॉन से कंपेयर किया, राइट, उसको उन्होंने किससे कंपेयर किया, प्रोटॉन से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि ये जितना भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो ये जो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्होंने कहा ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, दिस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इन्होंने सिंपल सा दे दिया, भाई देखिए हमारे पास ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको हम जे थॉमसन ने दिया था, तो सबने कहा अरे हो सकता है बहुत दिनों तक सब समझते रहे कि यही एक एटम का मॉडल होगा, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और वी कैन से दैट द positively charged proton are spread throughout the sphere, right। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे स्फीयर में स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उनमें धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। जैसे वाटरमेलन में हम लोग ने सीड्स देखा है, the seeds is compared with the electron and the red particle is compared with the proton, right। इन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए क्या काम करता है, देखिए अगर कोई भी एटम है तो उसको चाहिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, राइट। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कब बनेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तब बनेगी कि जब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ गई है, राइट। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ गई है, तो इट मीन्स दैट जो हमारा एटम का स्फीयर है वो कैसा हो गया, वो हो गया अब न्यूट्रल। अब भाई ये तो कह दिया सर जे थॉमसन ने कि हमारा एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हो गया न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इन्होंने कहा भाई देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने दिया है, बाकी सबने जब देखा तो सबने कहा हो सकता है भाई कि एटॉमिक मॉडल अगर आपने दिया है, अब पालम पुडिंग क्यों कहा था भाई, पालम पुडिंग की जैसे दिखता था, इसीलिए इन्होंने अपने मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को इन्होंने वाटरमेलन से भी कंपेयर किया, पालम पुडिंग से भी कंपेयर किया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पालम पुडिंग मॉडल और द वाटरमेलन मॉडल, और this atomic structure was discovered by the scientist J.J. Thomson, so it is also called as Thomson atomic model, right guys। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया भाई कि एटम्स में जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे प्रोटॉन्स स्प्रेड होते हैं, प्रोटॉन स्प्रेड होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, जस्ट लाइक अ watermelon seeds are compared with the electron and the positively charged species is compared with the proton, right। now अब देखिए इन्होंने ये तो दे दिया, अब यहाँ पे डे बाय डे, दिन बाय दिन बीतता गया, फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद देखा गया भाई
इनके कुछ जो एटॉमिक मॉडल था उनमें ड्रॉबैक्स थे। अब आपने सुना रदरफोर्ड के बारे में। अब उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने कहा भाई कि जो आप ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या सही है कि गलत है, ये हम कैसे समझेंगे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो लोग, अल्फा पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो उनके स्टूडेंट्स मिलके क्या काम कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। बिकॉज एक अल्फा पार्टिकल एक इतनी स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं जो कह सकते हैं मास को भी पेनिट्रेट, मतलब एक कोई वेटेड हो या मासी कोई एलिमेंट हो, वो पार्टिकल हो, तो उसको भी पेनिट्रेट कर जाती है। जैसे अभी हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था जब मैं न्यूट्रॉन पढ़ा रही थी आपको, राइट। उसको जब पेनिट्रेट कर जाते तो उस टाइम स्टडी चल रही थी अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, राइट। अब रदरफोर्ड ने देखा भाई कि ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर बताया, सब तो मान रहे थे भाई सर जे थॉमसन ने दिया है तो गलत तो होगा नहीं, ये सब तो सही बना होगा। उनके एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, उन्होंने कई सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे देखे जहां पे उन्हें लग रहा था नहीं भाई ये जो आपने दिया ये इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है अल्फा पार्टिकल का, ये एकदम मैच ही नहीं हो रहा है। तो ये भाई अगर मैच नहीं होगा तो इट मीन्स दैट जो सर जे थॉमसन ने दिया था एटॉमिक मॉडल, उसमें कुछ तो ड्रॉबैक थे। तो ड्रॉबैक देखिए उन्होंने क्या क्या बता दिए, हम ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्रॉबैक उन्होंने क्या दिया, ड्रॉबैक सिंपल सी चीज उन्होंने कही कि यहाँ पे जे थॉमसन ने ये तो बता दिया था कि जे थॉमसन का जो मॉडल ऑफ एन एटम था वो एंटायरली थ्योरेटिकल था। उन्होंने कोई भी लिमिटेशन क्या कहती है, इन्होंने कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं दिया, इन्होंने कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात नहीं किया, प्रूफ करके नहीं दिखाया था, कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था। जैसे इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी में हर एक को प्रूफ करके दिखाया था कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन की रेज ही है, बट यहाँ पे उन्होंने कहा भाई ऐसे ही दिखता होगा देख लीजिए, कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था इट मीन्स दैट कि ये गलत भी हो सकता था, राइट। इनका सेकंड ड्रॉबैक देखिए क्या हुआ, सेकंड ड्रॉबैक क्या कहता था, सेकंड ड्रॉबैक कहता था कि इन्होंने कोई भी could not explain atomic spectra, could not explain atomic spectra। इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी भाई बात नहीं की, उन्होंने कहा कि पता नहीं एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है कैसे होता है। जब इन्होंने थ्योरेटिकली सारी चीजें बता दी थी, थ्योरेटिकली सब एटम का स्ट्रक्चर बता दिया था, तो ये कैसे बता पाते कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, स्पेक्ट्रा कैसा था, राइट। अब यहाँ पे ये जो सर जे थॉमसन का मॉडल था स्टार्टिंग में तो आया, तब तक तो सबको सही लगा क्योंकि तब तक किसी को कुछ पता ही नहीं था एटम्स के बारे में। बट जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई वहां पे उनकी ड्रॉबैक्स निकलने लगी और इन्हीं के मॉडल को, मतलब जो इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट, फिर और मॉडल, मतलब पहले रदरफोर्ड का आया, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को ओवरकम किया बोहर्स ने। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल हम देखिए एक पूरा फुल वीडियो खाली रदरफोर्ड पे ही डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड के हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एज वेल एज हम बात करेंगे कि उनके ड्रॉबैक्स क्या थे और बोहर्स के मॉडल को क्यों लाना पड़ा, बोहर्स ने अपना मॉडल क्यों दिया। देखिए साइंस में क्या है, साइंस में सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे भाई जब ये स्ट्रक्चर गलत था तो बुक में छपा क्यों, राइट। और फाइनल स्ट्रक्चर जो था उसको छाप दिया होता, बस हम उतने थोड़े से कंटेंट को पढ़ लेते। इज दिस सफिशिएंट टू यू ऑल, क्या ये इतना सा कंटेंट जो हमें मिलता है कि एकदम फिल्टर्ड फॉर्म में, अगर मैंने आपसे कह दिया होता कि बोहर ने एटम का स्ट्रक्चर ऐसे दिया तो आपके मन में होता अरे मैम क्या ये ज़रूरी था, पॉसिबल था कि बोहर्स ने ऐसा दिया तो कुछ और नहीं बन सकता था। तो पहले के साइंटिस्ट सोच रहे होते थे कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा, तो उन्होंने पहले दिया कि ये सर जे थॉमसन का था। इनके ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया, वहां पे कुछ डिफ्लेक्शंस देखे, तो ये डिफ्लेक्शंस देख के वो बता रहे थे कि ये आपका जो एक्चुअली बेसिक जो होता है स्ट्रक्चर होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है कहीं पे भी बीच में ऐसे नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि एक सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज और एक ऐसा सेंटर है, एक छोटा सी ऐसी जगह है जो जिसका वेट है कुछ, उस वेट से ही अल्फा के जो पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, जिसके बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे।
तो ये वहां से उनकी डिस्कवरी, मतलब इनके मॉडल को ओवरकम कर दिया रदरफोर्ड के मॉडल ने। अब रदरफोर्ड ने बनाया था तो कोई ना कोई तो ड्रॉबैक आया। फिर से उन ड्रॉबैक्स के बारे में हम कल भी डिस्कस करेंगे। तो उन ड्रॉबैक को जो ओवरकम किया था उन्होंने बोहर्स ने किया। तो इस तरीके से हर एक एटम की या किसी भी चीज की साइंस में डिस्कवरी होती है, जिससे हमें एक फिल्टर्ड फॉर्म में, हमें जो साइंस मिली है वो क्या है, फिल्टर्ड फॉर्म है साइंस का, कि हमें सब कुछ एक्सपेरिमेंट हो गया, हमें बता दिया गया भाई देखिए ऐसे एटम बना। एटम के बाद सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बताया, फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन बताया, देन जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन बताया, देन सर जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल बता दिया। इट मे बी द पालम पुडिंग मॉडल और इट मे बी द नेम्ड एज अ वाटरमेलन मॉडल। तो इतने सारे हमें बता दिए गए। तो ये सब क्या है, साइंस की इन्वेंशन से कुछ नई चीजें हैं जो हमें इंटरेस्टिंग वे में हमें समझने को मिलती हैं। ओके चिल्ड्रेन, सबसे पहले आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला काम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन चिल्ड्रन इस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं 2, 3 और 4 क्वेश्चंस, राइट। इट डिपेंड ऑन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इट डिपेंड ऑन योर एकेडमिक्स। सो ये डिपेंड करता है कि देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो हर एक टॉपिक को हमें ऐसे पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टॉपिक से आ जाए, हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मेरा भी एम ये है और आपका भी एम यही है, राइट। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप डालेंगे हेडिंग थॉमसन एटम मॉडल ऑफ एन एटम और द एटॉमिक मॉडल, ठीक। उनके बाद डिफरेंट नेम्स भी लिख लेंगे, दैट इज द वाटरमेलन मॉडल और द पालम पुडिंग मॉडल। उसके बाद आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि उनके साइलेंट फीचर्स क्या क्या थे, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज और द पॉजिटिव स्पीशीज और द पॉजिटिव चार्ज particles are spread throughout the sphere, the electrons are embedded into it, and the number of proton is equals to the number of electron. It will give the electric neutrality to the atom, right. ये neutrality provide करते हैं atoms को। okay, now write the limitation. लिमिटेशन में उन्होंने कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं दिया, उन्होंने खाली थ्योरेटिकल के बारे में बात किया, उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। कुड नॉट गिव द एक्सप्लेन ऑन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, राइट। सो आप ये नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो बिकॉज एज वी ऑल नो चिल्ड्रेन, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे ही कल अपलोड हो आपको तुरंत मिले और आप इसका अगला टॉपिक जो रदरफोर्ड का टॉपिक है आप उसको भी समझ पाएं। देखिए अगर एक भी क्लास आपने मिस कर दी तो आपकी फ्लुएंसी, आपने एक समझ लीजिए आपने एक स्टेयर छोड़ दिया है। तो हम कभी भी स्टेयर्स ऐसे नहीं है कि ये आपकी स्टेयर्स है तो हम यहाँ पे रखेंगे उसके बाद जंप कर जाएंगे। देखिए जंप करेंगे तो हमें बीच वाली चीजें नहीं समझ में आएंगी और ये नहीं करना है हमें, राइट। ओके, now this is all about today. Thank you class.